Good morning, students. Myself Deepali Harchande. I welcome you all for the political science session. Already we have started with the lesson number 6. Two parts of this lesson I have uploaded already. Today we are going to continue with the same lesson. In the first two parts, we have learned about the objectives of Indian foreign policy, principles of Indian foreign policy. After that, what does it mean by non-alignment, the literal meaning, as well as the context meaning of this non-alignment. Then we have learned about factors influencing Indian foreign policy. मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो उसमें हमने ज्योग्राफी देखी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल सिस्टम. After that, we have learned about major powers. As we have seen in the at the time of unipolar system, United States was the superpower in this world, and the same superpower, the same system is carried over right now also. So the relations of India with United States we have learned. Then terrorism, then how was the relations between India, Pakistan and in America, India, Pakistan and China. These all things we have learned here. In this session we are going to learn about Soviet Union and Russia. Soviet Union means Russia. After disintegration, the Russia has got its name, that is Russia. So we are going to learn about relationship between India and Soviet Union. See, it was an enduring relationship. Enduring means long-lasting relationship. Before Cold World War and after Cold World War, the relations between India and Soviet Union, it was good relations. It was long lasting relations, we can say enduring relations. So we have carried over the same relations till yet. Yes, somewhere in between, the relations between us was started worsening, but later on in 1971 we have started coping with Russia, and because of that we could maintain good relationship with the Russia. Now what all the reasons, with the help of these reasons we can say we could maintain good relations with Russia. Now let's see what all those reasons, because of what we could maintain a sustainable relationship with Russia. Fine. Very first is since Cold World War period, Soviet Union was providing us various aids in the form of technology and low interest credit to India's heavy industry projects in public sectors. Means what? We were getting help from Russia in the form of technology. वो हमें टेक्नोलॉजी बेचते थे, लो इंटरेस्ट पे क्रेडिट लोन देते थे हमें. ये सब पब्लिक सेक्टर के लिए ऐसे वो हेल्प करते थे. अभी क्या है, और क्या क्या कौन कौन से हेल्प करते थे, कौन कौन से फॉर्म में हेल्प करते थे, तो वो एक हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसके वजह से इंडिया और रशिया में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है. वो वजह है कि जो वेपन्स है, वो वेपन्स हम रशिया से परचेस करते थे, इंपोर्ट करते थे, और वही एक रीज़न है जो हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है. तो हमारे डिफेंस फोर्स को जो वेपन्स लगते थे, जो टेक्नोलॉजी लगती थी, वो हम रशिया से लेते थे.
here they have mentioned one point. It also provided major weapons to the Indian Defence Force and made agreement for licensed production of some of these weapons in India. तो लाइसेंस भी है, हमने लाइसेंस प्रोडक्शन भी किया है, हम मतलब लाइसेंस हमें रशिया से मिला है और वो जो प्रोडक्शन रहता है वो इंडिया में होता है. तो ये भी हम ये जो इंडस्ट्रीज़ है, पब्लिक सेक्टर से, इसके लिए भी किसने हेल्प किया है? रशिया ने हेल्प किया है. सो नेक्स्ट इज़ इंडो सोवियत रिलेशनशिप ट्रीटी of 1971 was an important milestone in bilateral relations. Bilateral means from the both sides. दोनों साइड से रिलेशन जो है वो अच्छे रहने चाहिए. फ्रेंडशिप, हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी किया है 1971 में, और ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से हम सस्टेन कर रहे हैं हमारा रिलेशन. ये देखो यहाँ पे एक स्टैम्प दिया गया है, जॉइंट इशू ऑफ पोस्टेज स्टैम्प बिटवीन रशिया एंड यूएसए. यहाँ पे देखो आपको भारत और रूस का जो संयुक्त डाक टिकट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे दोनों देशों के जो संस्कृति है, ट्रेडिशन है, उसका उन्होंने एक वो रिवील किया है इस पोस्ट टिकट से और पोस्टेज स्टैम्प से. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट. During the first few years after the disintegration of Soviet Union, relations between India and the new state of Russia were not good. They began to improve in the late 1990s. थोड़े से अनबन हुई थी, लेकिन रशिया से हमारे रिलेशन 1990 से बहुत अच्छे फिर से बने हुए हैं. रशिया मेड एग्रीमेंट फॉर अ joint venture to produce Sukhoi fighter aircraft and BrahMos missiles. ये देखो अभी रशिया से हमने एग्रीमेंट किया, किसके लिए? एक जॉइंट वेंचर, मतलब दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया कि उसमें क्या प्रोडक्शन वो करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट्स है और जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है उसका हम यहाँ पे दोनों देशों से प्रोडक्शन हो जाएगा. ये ऐसा एक एग्रीमेंट किया था उन्होंने. इट आल्सो एग्रीड टू प्रोवाइड रिएक्टर्स फॉर इंडियाज़ कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट. सी इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट, in previous topic we have learnt about Kudankulam nuclear plant. Actually in India the people from Kudankulam, or the people those who belong to Kudankulam area, they were against with this nuclear power plant because there are lots of side effects also of this plant, and that is why people were not agree to establish such plant in their area, in their Kudankulam region. But that time Russia was ready to help us and to provide reactors in this plant. Then Russia sold its aircraft carrier Admiral Gorosko to India. उन्होंने हमें और एक कैरियर दिया है जिससे कहा जाता है एडमायरल गुरस्को, विच इज़ नाउ नोन एज INS विक्रमादित्य. उसको हमने रीनेम किया है इंडिया में, उसका नाम हमने दिया है INS विक्रमादित्य. See, is known as INS Vikramaditya. Transfer of Russian weapon system to India continues to be the main foundation of bilateral relations. Bilateral relations means from the both sides we have agreed, we have started developing sustaining relations. जो हम बोलते हैं ना शाश्वत रिलेशंस हमें रखना है, तो वो शाश्वत रिलेशन की तरफ हम मुड़ने लगे. Besides, both countries have major stakes in Russia. Russian oil fields such Sakhalin first, highlighting importance of energy security. अभी energy security मतलब energy resources, फाइन, उसके सिक्योरिटी के लिए भी कुछ मेजर एक्शंस लिए गए दोनों देशों की तरफ से, और उस एक्शन को नाम दिया गया
सैखलिन फर्स्ट। अभी ये तो हुए रशिया और इंडिया के रिलेशंस, इंडिया एंड सोवियत यूनियन के रिलेशंस. आफ्टर दैट we'll move towards the relationship between China and India. As we all know, yes, the trade is there, trade and communication. Uh, I must say here, for the trade and communication, China is the best option. But for other things, means for border issues, then the issues between Hindi, Chini bhai bhai, in that issues, uh, the relations started worsening. Already relations were not good in the Cold World War, after the Cold World War, and when the India got independence in 1947, after that the issue, means border issue, started raising amongst these two countries. So we can say the relations were not good. The relation began to worsen toward the end of the 1950s. 1950s तक तो हमारे रिलेशन पूरे ख़राब हो गए थे. अभी ये देखो क्या लिखा गया है. द चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1949. हमने देखा है कम्युनिस्ट रिलेशनशिप और कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन मीन्स व्हाट, एक समाजवादी उत्क्रांति हुई थी. जो हमने मार्केट पॉलिसी देखी है ना, कि इंडिया का लिबरलाइजेशन है, लिबरल मार्केट पॉलिसी है, अमेरिका की कैपिटलिस्ट पॉलिसी है, वैसे ही रशिया की कौन सी पॉलिसी है, कम्युनिस्ट पॉलिसी थी मार्केट की. सेम हियर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन मतलब एक उत्क्रांति हुई समाजवाद की, जिसको इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया. In the earlier days, the India was also in the favor of the communist revolution, but afterward, the India was not ready to accept this system. India was among the first few countries to recognize the People's Republic of China. चाइना के जो रिपब्लिक जो एक्सेप्ट किया था उन्होंने सिस्टम, उसके लिए हमने फेवर किया है इंडिया ने. तो हमारी कंट्री फर्स्ट थी जहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम का हमने प्रशंसा की है. द टू कंट्रीज वेंट अहेड टू रिवॉल्व फ्रेंडली रिलेशंस. दे साइन अ ट्रीटी इन 1954 फॉर ट्रेड एंड कोऑपरेशन दैट आल्सो रिकॉग्नाइज्ड चाइनीज सॉवरेनिटी ऑन तिब्बत. बाद में हमने 1954 में एक ट्रीटी साइन किया था. तो वो ट्रीटी किसके मतलब वो ट्रीटी सॉवरेनिटी के लिए थी. सॉवरेनिटी मीन्स फ्रीडम, सर्वधर्म समभाव. तो एक ऐसे भी ट्रीटी हमने किया था, ट्रेड के लिए भी किया था. एंड चाइनीज़ सॉवरेनिटी ऑन तिब्बत, तिब्बत में चाइना का हमने सार्वभौमत्व एक्सेप्ट किया था. अभी देखो बाद में क्या हुआ. However, the relations between India and China became to worsen towards the end of the 1950s. अभी इसके रीजंस देखेंगे क्यों वर्स हुआ था. रीज़न फॉर इट वाज द क्वेश्चन ऑफ बॉर्डर बिटवीन द टू बोथ इन अक्साई चीन इन लद्दाख एंड द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. अब देखो अक्साई चीन, हमारा जो लद्दाख का जो एक एरिया है, सो उसमें अक्साई चीन एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी which is now the state of अरुणाचल प्रदेश in the Indian Union. ये अरुणाचल प्रदेश इंडियन यूनियन में आता है, उसका एक हिस्सा है. तो इसके बॉर्डर का इशू क्रिएट हो गया. मतलब लद्दाख में चाइना ने खुद का एक पार्ट जो है वो अनाउंस किया कि ये अक्साई चीन का प्रदेश है जो लद्दाख में था, और लद्दाख ये हमारे देश का एक हिस्सा है. वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा जो हिस्सा है वो क्या किया चाइना ने, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोल के उन्होंने वहाँ पे भी कब्ज़ा किया, कैप्चर किया. तो इसके वजह से क्या हुआ, ये दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुई. अ वॉर ऑन द बॉर्डर इन 1962 रिजल्टेड इन इंडियाज़ डिफीट. उसमें इंडिया डिफीट हो गया, मतलब पराभूत हो गया.
और उसके बाद जो रिलेशंस था वो पूरा चेंज हो गया. सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर कट ऑफ आफ्टर दैट. हमारे रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए, हमने वो रिलेशन भी ख़त्म किया. अनदर इम्पोर्टेंट रीज़न वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ तिब्बत. अभी तिब्बत का जो तिब्बत ये हमारे इंडिया का एक भाग था जिस पे कब्ज़ा किसने किया? चाइना ने किया. तो इसके वजह से भी हमारे रिलेशंस ख़राब हो गए. चाइना हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ द इंडियन डिसीजन टू गिव पॉलिटिकल असाइलम टू द दलाई लामा. ये तो बहुत ये जो कहानी है दलाई लामा की, ये जो इशू है ये बहुत पब्लिश हुआ था. ये बहुत फेमस इशू है. दलाई लामा को इंडिया ने ये किया था. असलाम मीन्स आश्रय दिया था इंडिया ने. किसको दिया था? दलाई लामा ने. इसके वजह से क्या हुआ? चाइना का जो गवर्नमेंट है वो हम पे गुस्सा हो गए. चाइना एंग्री ऑन अस बिकॉज वी हैड असलाम दलाई लामा. फाइन. सो दैट वाज अनदर reason. Next is India and China resumed their full-scale diplomatic relations in 1976. India made attempts to improve relations with China under Prime Ministers Morarji Desai and Rajiv Gandhi. Yes, we had taken lots of efforts. Then we have taken lots of attempts also to improve our relations with China under the guidance of Morarji Desai and Rajiv Gandhi ji. So at that time what had happened? We have signed one agreement. The two countries established joint working groups to discuss the long disputed border and made the agreement on maintenance and of peace and tranquility along the line of actual control. LAC बोलते हम. एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे पीस होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए. इसके वजह से उन्होंने क्या किया? एक एग्रीमेंट साइन किया जो बॉर्डर इशू था उसके लिए. ये एक प्रयास था इंडिया के रिलेशंस, मतलब इंडिया की तरफ से ये प्रयास था कि जो रिलेशंस है वो अच्छे करने के लिए ये एक प्रयास था. Next is relations between China and India in the 21st century are quite complex in nature. अभी तो हम सबको पता है कि हमारे रिलेशंस चाइना के साथ कैसे हैं. यह अभी तक बहुत वर्सन है. अभी तक हमने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं वो सब खारिज किए गए हैं चाइना की तरफ से. वन मोर इशू ये है कि चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और ये इरिटेशन किसको होता है? इंडिया को ये इरिटेशन होता है. रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द 21st century quite complex in nature. On the other hand, the border dispute between the two countries has not been resolved and continues to create tension. अभी तक कोई भी बॉर्डर का जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है. अक्साई चीन देखो, LAC देखो, हमने ये भी देखा है. NEFA मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. कौन सा भी इशू हो ये इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है. ये इशू कंटिन्यू चालू है. द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व्ड एंड कंटिन्यूज टू क्रिएट टेंशंस. अभी भी बॉर्डर के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना घुसपैठियों को भेजता है हमारे क्या बोलते हैं हम, जो बॉर्डर है हमारी वहाँ पे. जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट को भेजता है वैसे चाइना थोड़ी थोड़ी हमारी जो भूमि है, हमारी जो देश की जो बॉर्डर है उस पर वो थोड़ा थोड़ा कब्ज़ा कर रहा है. See, now next is, on the other hand, the two have opened
द नाथुला इन सिक्किम फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। यहाँ पे देखो आपको ये पिक्चर दिखाई देगा। ये जो रोड है वो दोनों देशों की तरफ से खोला गया है। उसको नाथुला रोड बोलते हैं। और इससे क्या होता है, इंडिया और चाइना में जो बॉर्डर के यहाँ से जो ट्रेड एंड कम्युनिकेशन जो भातुक है वो यहाँ से होती है। अंडरलाइन दिस पॉइंट। लास्ट, trade relations between two countries have grown in last 2 decades and China is today among the 3 largest trading partner of India. Yes, आपको तो पता है हमारे यहाँ पे इंडियन जो मटेरियल है उसको ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन जो चाइना का जो मटेरियल है, चाइना के जो गुड्स है, चाइना का जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि उन्होंने जो मटेरियल इंडिया में भेजा है वो बहुत ही कम दामों में मिलता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो इंडिया में भी कैसा है, लोगों को हमारे इंडिया में अगर आप लोग देख सकते हो कि हमारे इंडिया में जो गरीब लोग हैं उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ पुअर पीपल्स आर मोर in our country, and because of that people they are demanding Chinese material, Chinese goods, because of the living status of our Indian people. See, अभी हमने देखा 3 लार्जेस्ट कंट्री में से एक जो है वो चाइना है। देन इंडिया कंटिन्यूज टू हैव apprehensions and legitimate claims against China's ambitious Belt and Road Initiative BRI। मतलब चाइना ने जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, ट्रेड पॉलिसी, उसको हमने हमेशा क्या किया है, अगेंस्ट नहीं गए हम, लेकिन वो एक्सेप्ट भी हम इतनी जल्दी नहीं कर रहे हैं। However, China and India partner with each other in multilateral fora such as the World Trade Organization WTO and on issue of climate change। अभी ये WTO ने भी, मतलब हु जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया है कि ये क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है। जो कुछ ट्रेड होता है, ट्रेड के लिए प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, ये प्रेशर किस पे आ रहा है, हमारे अर्थ पे आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये सब जो रिसोर्सेस है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, नया एक इशू इमर्ज हुआ है, वो है क्लाइमेट चेंज। Chinese support to Pakistan also continues to be one of the important reasons for irritation between the two countries। ये भी सही है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि चाइना किसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमेशा ये कंटिन्यूएशन में रहा है, इंडिया पाकिस्तान चाइना ये ट्रायंगल बना हुआ है, और इस ट्रायंगल में चाइना और पाकिस्तान ये दो देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इंडिया के खिलाफ। फाइन। सो हमने क्या देखा अभी, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, सोवियत यूनियन एंड इंडिया एंड चाइना। यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये देखो सोवियत यूनियन और रशिया। देन इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप, how it was started developing, when it got raised, when it got worsened, that thing we have learned here. In the next lecture, in the fourth part, we are going to discuss about India as emerging power, as we have seen that the world is moving towards multipolarity. So in that multipolarity, India is one of the part of this multipolarity, along with the China, means followed by China, India is also emerging as a power, as a superpower in this world. That thing we are going to learn, and in the next part we'll start with the neighborhood also, means the relations
of India with other neighboring countries. Fine, students. So I hope you have understood till here. If you have any doubt, comment me in comment box. Thank you, students. Be safe. Bye bye.